Hello student, today we will start with lesson number 2 of your history standard 8. Lesson name is From Trade to Territory. In this chapter we will study how in half 18th century the new political power emerged after the last Mughal emperor Aurangzeb, and this new political power was British. In this chapter, we will study how East India Company was formed and how they started their trading in Bengal. After trading in Bengal, how they started conquering the territories and finally they started ruling a country, India. Page number 9 of your book. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. He was the last Mughal ruler, most of part उस जो territory वो rule कर रहा था जिसको India बोलते हैं. After his death in 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. After Mughal ruler Aurangzeb, when he died in 1707, काफ़ी मुगल सूबेदार और ज़मींदार जो पावरफुल थे उन्होंने एक किंगडम को एक रीजन को लेकर वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो गए, जिसकी वजह से अब दिल्ली कोई भी लॉन्गर एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा जिससे फंक्शन हो सकता. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on political horizon. That is British. Did you know that British originally came as a small trading company? वो यहाँ पे एक small trading company के तरीके से यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने आया था. फिर वो कैसे मास्टर्स बन गया ये वास्ट एम्पायर और कैसे उसने सारी टेरिटरीज को कॉन्कर कर दिया. We will study in this chapter. Page number 10. Now that is how East India Company was formed. Before starting this, I would like to give you few informations. Many European countries merchant from various world were attracted with Indian commodities like cotton cloth, muslins and few spices, which was in great demand in their European country. The first traders were the Arab who traded with the help of a land route. Somehow the situations changed and the land route was blocked. After that, many European countries thought for the sea route and they started venturing the sea route and they started finding a new sea route to trade for India. Vasco da Gama was the first Portuguese ruler who found the sea route to India for trade. So he was the first European who started trade with help of the sea route. After Portuguese, Dutch, French and British came over India for trade. Now what was the reason for trading? उन्हें सभी रॉ मटेरियल चीप रेट पे मिल रहा था और ये सभी चीप रेट पे रॉ मटेरियल जैसे कॉटन क्लोथ, मसलिन और स्पाइसेस वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में हाई रेट पे सेल करते थे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलते थे. जब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आने लगी और उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे खोल दिया, हर एक के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा क्योंकि सभी को प्रॉफिट लेना था और सभी को मोनोपोली यहाँ पे करना था. ये सभी पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा ब्रिटिश और वो अकेला रहा जिसने यहाँ पे काफ़ी साल तक ट्रेडिंग की. फिर ट्रेडिंग करते करते उसने हमारी टेरिटरीज को कॉन्कर करने लगा और वहाँ पे मोर 100 years वो यहाँ पे इंडिया में रूल करने लगा. नाउ पेज नंबर 10. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. इन 1600 में एक मर्चेंट का ग्रुप फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी. दे एक्वायर चार्टर. वो लोग क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते जिसको चार्टर बोलते हैं. फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I,
ग्रांटिंग इट अ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और उनका अकेला का एक सोल राइट, और दूसरी और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से नहीं जाएगी ट्रेडिंग के लिए. This meant that no other trading group in England could compete with East India Company. With this charter, company could venture across the ocean, और वो सी रूट से इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आ सकती है. चार्टर साइन कर दिया और उनको परमिशन मिल गई. Looking for a new lands from which it could buy a new goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. The company did not have a fierce competition from other English trading companies. उन्हें चार्टर साइन करवा दिया था, तो इंग्लैंड में से उनके अलावा कोई और कंपनी जाने नहीं पाई. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competitions, so that they could buy cheap and sell dear. Mercantile definition is given. It is a business group who makes the profit from buying goods at the cheap rate and selling them at the higher rate. Now the Royal Charter, the document, the agreement which was signed by Queen, however could not prevent other European countries. वो इंग्लैंड की कंपनी को प्रिवेंट कर सकती है, पर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को तो वो रोक नहीं सकती है फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट. By the time the first English ship sailed down west coast of Africa, the date is not given in your textbook. सबसे पहले शिप जो यहाँ पे अराइव हुई थी वो है 1608 ब्रिटिशर्स की, पर यूरोपियंस में इंग्लैंड के सिवा जो सबसे पहली शिप यहाँ पे अराइव हुई थी वो थी वास्को डी गामा की. So he was the first person to find the sea route to India. By the time the first English ship, जब तक इंग्लिश यहाँ पे शिप आए उसके पहले पोर्चुगीज ऑलरेडी हैड अराइव्ड, और वो यहाँ पे अराइव्ड हुई थी 22nd May 1948. They have already arrived on 22nd May 1948. Vasco da Gama was the first person who found the sea route. और उन्होंने कालीकट में आके वहाँ से ट्रेडिंग शुरू किया, फिर गोवा में किया, फिर दीव, दमन, गोवा, मुंबई एंड फ्यू पार्ट ऑफ श्रीलंका में ट्रेडिंग कर दिया. उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच. ब्रिटिशर की फर्स्ट शिप आई थी 1608 जिसमें विलियम हॉकिंस थे. तब मुगल रूलर जहांगीर थे, उनको परमिशन नहीं मिला ट्रेडिंग के बाद. फिर सर थॉमस रॉय दूसरे इंग्लिश मैन आए और उन्होंने परमिशन लिया, तब सूरत से उन्हें परमिशन मिला. फिर जब शाहजहां मुगल एम्परर हुए तब उन्हें बंगाल से ट्रेडिंग करने की परमिशन मिली. The problem was that all companies were interested. अभी जितनी भी कंपनीज यहाँ रही थी, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश, ये जो भी कंपनीज थी वो सभी इंटरेस्ट थी एक ही चीज बाय करने में, द रॉ मटेरियल, कॉटन क्लोथ, मसलिन, द स्पाइसेस which were there in India at a cheap rate. Fine qualities of cotton, silk, pepper, clove, cardamom, cinnamon, which were in great demand. Now there started a competition. ये सभी यूरोपियन कंपनीज के बीच में कंपटीशन शुरू हो गए. The only way trading companies could flourish, और कोई भी स्पेसिफिक एक ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे तभी डेवलप हो सकती है जब उसकी अपोजिट यानी उसकी राइवलरी कंपनी यहाँ से एलिमिनेट यानी चली जाए, और हर एक के बीच में एक फाइट शुरू हो गया. थ्रू 17th and 18th century they started sinking each other's ship. एक दूसरे की शिप को सिंक करने लगे, रूट्स को ब्लॉक करने लगे, सप्लाईज को ब्लॉक करने लगे, और हर एक ट्रेड आर्म के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया. उनकी जो भी ट्रेडिंग फोर्ट्स थे उसको फोर्टिफाई करने लगे, यानी ह्यूज वॉल से कवर करने लगे तो अपोजिट कंपनी उस पर हमला ना कर पाए. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, कैरिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, हर एक कंपनी के बीच में तो लड़ाई शुरू हो गई, पर अंदर अंदर लोकल रूलर्स जो इंडिया के थे उनके बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो गया. नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड their ट्रेड इन बंगाल. उन्होंने बंगाल में
उनका ट्रेड कैसे शुरू किया। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651 और ये बेस थी ट्रेडर की, कंपनी ट्रेडर की ये सबसे बड़ी पहली और इम्पॉर्टेंट बेस थी। इस कंपनी बेस में जो भी ट्रेडर्स काम करते थे उसको फैक्टर्स बोला जाता था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders used to trade and it was known as factory. The factory had a warehouse जहाँ पे सारे goods export हुए स्टोर होते थे, उनकी ऑफिसेस भी होती थी। As trade expand, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपांड हुआ कंपनी ने मर्चेंट्स को ट्रेडर्स को फैक्ट्री के नज़दीक ही सेटल करवाया। By 1696 it began building a fort और हर एक सेटलमेंट के पास उन्होंने एक फोर्ट बिल्ड किया। 2 years later उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स जो मुगल रूलर्स थे उनको रिश्वत देना यानी ब्राइब करना शुरू किया। कंपनी जमींदार उन्हें जमींदारी ब्राइब देने लगे। One of these was Calcutta which later grew to the city of Calcutta और कोलकाता। एक बार उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी परसुएट यानी कन्विंस किया टू फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। नाउ फरमान इज अ रॉयल ऑर्डर। औरंगजेब को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि हम जो भी इंडिया में बंगाल में ट्रेड कर रहे हैं वो ड्यूटी फ्री हो, यानी जो भी ट्रेड करे उस ट्रेड पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली फॉर द कंसेशंस। Aurangzeb's farman have granted them trading in Bengal duty free, पर इसकी वजह से बंगाल का जो भी रेवेन्यू था वो कम हो गया और दूसरे जो नवाब आने लगे औरंगजेब के वक्त, नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, वो लोग ब्रिटिशर की इस ड्यूटी फ्री टैक्स से हैप्पी नहीं थे।